afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. So, shall we start? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Is it visible, huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to deal with directing. Okay. So you all are directing to me, na? So thank you so much, my dear student. I'm from third semester. So now we are starting today directing. So direction is the sum total of managerial efforts which takes the organization towards the predetermined goals. If suppose your concept is clear, then only there is a predetermined goal. Otherwise, so many times it's happened, you are confused enough. Why? Because the thing which you want is not strictly followed to achieve the things. But as far as organization is concerned, direction is the sum total of managerial effort. Managerial means post-act planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Efforts which take the organization towards the predetermined goal. As far as management is concerned, hierarchy, superior is concerned, they are having predetermined goals. They know very well how to reach, how to achieve the object. So here direction, which is very essential and must. Why? If there is a proper direction, then you can easily reach your destination without wasting your time. ठीक है? अच्छा, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई. देखो आप लोग घूमने जाते हो, आप लोग घूमने जाते हैं ना. You people are moving outside of your house in today's time. I'm not talking about today's time, okay? Because in this pandemic we don't move outside. But in general, जब situation normal थी, आप लोग घूमने जाते थे. Yes, अरे sir. हाँ, तो घूमते हो ना, तो घूमने में आप एक रूट डिसाइड होता है कि नहीं. सपोज घूमना भी छोड़ दो, आप घर से निकलते हो और कॉलेज को आते हो, ठीक है? तो घर से निकल के कॉलेज आने के लिए आपको एक रूट, एक रोड मैप कि मैं इस रोड से जाऊंगी, मैं इतने मिनट में पहुंच जाऊंगी, ये होता है कि नहीं होता है? इज इट ट्रू ना? Yes, sir. हम अपने ऑब्जेक्ट से अपनी डेस्टिनेशन, सपोज योर होम इज योर ऑब्जेक्ट और आपका डेस्टिनेशन सेंट थॉमस कॉलेज है. सो यू ऑप्टिंग सम वे, सम रूट जो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. कभी आप लेफ्ट टर्न करते हो, कभी आप राइट टर्न करते हो, ठीक है? कभी आप स्ट्रेट जाते हो,
ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ टाइम 5 to 10 15 जो भी टाइम लगता होगा उस टाइम के बाद आप यू रीच दी कॉलेज। द सेम थिंग इज डायरेक्शन, ठीक है। प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड क्या है कि मुझे कॉलेज जाना है। लाइफ में भी देयर आर सर्टेन गोल्स विच इज प्री डिटरमाइंड, क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्री डिटरमाइंड गोल्स, ठीक है। लास्ट ईयर टर्नओवर 10,000 करोड़, नाउ इट्स 15,000 करोड़, प्री डिटरमाइंड गोल है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं आपका एरिया वाइड हो जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल नैरो, ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, डायरेक्शन की बात कर रहे थे। डायरेक्शन इज द सम टोटल ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स व्हिच takes the organization towards the predetermined goals. Then some of the definition which is given by author: directing concern the total manner in which a manager influence the action of subordinate. Okay, so the superior and manager having one of the main important duty is that to influence the subordinate. आपके अंडर पे जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको क्या करो, इन्फ्लुएंस करो। किस लिए इन्फ्लुएंस करो, अच्छा काम करने के। इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट, कि वो whatever the duty which assign, you have to complete your duty, the time duration which is allotted to you. You have to complete your job within the time duration और उसको बेस्ट तरीके से करो, ठीक है, अपना एफर्ट डालो, ठीक है, एंड ट्राई टू बिकम सिंसियर। इट इज द फाइनल एक्शन ऑफ अ मैनेजर in getting others to act after all preparation have been completed, ठीक है। सी देखो आपने सारा प्लान बना लिया, सब कुछ हो गया, everything is done. Now the thing is that the plan which you are having in mind, whether you are in a position to implement in the ground realities. If you implement in ground realities, definitely there will be result in front of us, ठीक है। तो अगर रिजल्ट है, it means that final action of a manager in getting others to act after all preparations have been completed. This definition given by Joseph Massey. And another definition, direction is the sum total of managerial efforts. Again, managerial efforts means planning, organizing, staffing, directing, that are applied for guiding and inspiring the working terms. See, guide means time to time you have to take decision. So while taking decision, you should try to take decision in such a way so that your organization and institution will be maximum benefited, okay, and inspiring the working terms to make better accomplishment in the organization. देखो क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करो, काम अच्छे से करना है, इंस्पायर करो वीडियो दिखा के, उससे अच्छा ये है कि आप खुद से काम करो इन फ्रंट ऑफ अदर। यू शुड बिकम रोल मॉडल ऑफ अदर्स, कि देखो ये जो सर है, ये जो मैनेजर है, वो जब ऑफिस में आते हैं तो ये ऑफिस के हो जाते हैं और ये हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। ऐसा अगर आपके सबऑर्डिनेट्स बोल रहे, इट मींस दैट देयर इज अ पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स और कलीग्स, ठीक है।
तो बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो हमारे आसपास भी आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल पर्सन ने बोला था कि द थिंग इज दैट यू शुड रीच योर होम एट राइट टाइम। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि अपने घर पे राइट टाइम पे पहुंचो, तो लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो बदमाश है, राइट टाइम पे पहुंचने की बात कर रहा है। बट अगले ही मोमेंट में हम ये बोलते हैं कि इफ यू रीच right time in your home, be punctual while joining your job and always try to reach your job at right place। ठीक है, और आप जब जॉब में आते हो, ठीक है, तो फिर आप जॉब पे ही कंसंट्रेट करो, अपना पर्सनल लाइफ को थोड़ा साइड करो। ठीक है, यू शुड थिंक अपॉन योर जॉब। ठीक है, लेकिन देखो ऐसा होता है कि कोई भी 100% नहीं, देखो कभी कभी फोन वगैरह आते हैं, लेकिन यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज थिंग्स। ठीक है, आप अपने जो पर्सनल काम है, अपना फ्रेंडशिप सर्कल, ये सब चीजों को ना कम करिए, जितना एसेंशियल और रिक्वायर्ड है उतना करिए, और आप जॉब कर रहे हो ना, तो जॉब पे ही फोकस करो। ठीक है, so guiding and inspiring, the main thing to inspire, you should try to involve yourself। ठीक है, and the moment you are involving yourself, definitely others ready to follow you। ये इंस्पायर करने का वन ऑफ द बेस्ट वे, जो अच्छे अच्छे लोग, मतलब काफी बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन और जो टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स है, वो बोलते हैं कि बी इन टच विद ग्राउंड रियलिटीज। हमेशा ग्राउंड रियलिटी से फैमिलियर रहना चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ता है, कुर्सी में बैठ के नहीं आता वो फैमिलियर। ठीक है, तो इंस्पायरिंग दी वर्किंग टर्म्स टू मेक बेटर अकॉम्प्लिशमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बेटर है, इट टेक्स टू मच टाइम। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना बहुत इजी है, लेकिन बनाना इट्स make so sincere effort while making better accomplishment in the organization। Then next is features or characteristics। तो जब हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज कंसर्न विद इशूइंग of order and instruction to the subordinate। Definitely there is some order on the basis of daily, on the basis of weekly, on the basis of 15 days, ये कुछ orders होते। If there is an order, there is an instruction to subordinate also कि आप लोगों को मिलके काम करना है, आपकी टीम में कौन है, like that। And if some members in team, definitely you try to coordinate, you try to manage your frequency with others। ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड है, सामने वाला थोड़ा सा स्लो है, ट्राई टू साथ में लेके चलो, जिसको बोलते हैं। ठीक है, साथ में लेके चलो, भगो मत आगे, बिकॉज यू आर इन टीम। Then it is guiding and counseling the subordinate। ठीक है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, डायरेक्शन देने के साथ गाइड तो करते हैं, लेकिन काउंसलिंग भी करते हैं इसको सबऑर्डिनेट in their work with a view to improving their performance। See, if your manager, if your superior, so while observing your subordinate, you can easily counsel कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा वीक है, आप इस पे काम करो, आप और अच्छे हो जाओगे। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव है ना, आप सारे लोग अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन वी शुड फेस कंपटीशन, तो हमको बेस्ट बनना है। ठीक है, क्योंकि अगर बेस्ट हो तभी आगे जा पाओगे, अदरवाइज स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रगल से भी घबराना नहीं है। आज मैं पढ़ रहा था कि क्या पढ़ रहा था, कुछ ऐसा पढ़ा था, डायलॉग क्या लिखा था कि दूध को, दूध में ऐसा करके कुछ डालने से क्या कुछ फट जाएगा दूध, तो वो लोग डरते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते, पनीर बनाना नहीं जानते। इट मीन्स दैट, देखो ये जो दूध होता है ना, दूध दूध क्या होता है, जैसे फट जाता है उसके बाद पनीर बनता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूध गर्म करके
फटने के बाद वो लोग डरते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। ऐसे करके बहुत अच्छा लगा। इसका मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि लाइफ में जो भी है सिचुएशन, ठीक है, वेदर यू आर इन फेवर एंड यू आर अगेंस्ट, वो आपको सिखा के जाएगा, ठीक है। तो आपको धूप धूप छाव बोलते हैं ना, वो लाइफ का पार्ट है। तो द वर्क विथ अ व्यू टू इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। अगर आपको कोई बता रहा है कि यू शुड इम्प्रूव, तो आपको उससे झगड़ा नहीं करना है भाई, ठीक है। यू ट्राई टू इम्प्रूव, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए बता रहा है आपको, ठीक है। और जो मैनेजर्स होते हैं उनका भी द वे विच डील्स विथ पीपल इट्स सॉफ्ट इनफ, ठीक है। आपको एकदम हार्श, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं बोलना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलना है कि अपना काम भी हो जाए और उसको बुरा भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रिक और टैक्टिस, ठीक है, जो आता है प्रैक्टिस से, ठीक है। इट इज सुपरविजन ऑफ द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट इट conforms to superior of the work to subordinate, ठीक है। तो सुपीरियर्स क्या होते हैं? सुपीरियर ऑफ द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट इट कंफॉर्म्स टू प्लान, ठीक है। आप जो भी असाइन जॉब है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही करोगे, यानी यू शुड ऑलवेज इन ऑन द ट्रैक, ठीक है। आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना। और ये सुपीरियर्स को ही ऑब्जर्व करना है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। Then next point, directing is pervasive because it is performed at odd level of. Definitely, see, suppose if your manager, if your superior, it doesn't mean you won't perform. You should also enhance your skills. Okay, update your skill. You should become more dynamic, more influencing others. You should know how to deal, ground class people, those who are illiterate, कम पढ़े लिखे लोग जो है, ठीक है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो ये जो डायरेक्शन है वो हर लेवल पे जरूरत है, नॉट ओनली लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, वट एवर द लेवल इट मे बी, देयर इज अ नीड ऑफ परफॉर्म, ठीक है, at all level of management, whether we are talking about lower, middle or top level. The next point, it is a continuous process because it deals with the continuous guidance to be provided by the superior to their subordinate. See what happened, जैसे अगर अपन कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने से वो सब्जेक्ट इजी होता है। वैसे ही अगर आप किसी काम को करते हो तो अगर आप बार बार करोगे ना, बार बार डील करोगे, तो देन ओनली यू आर हैविंग कंफर्ट जोन। आप बार बार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जिससे बोलते हैं, अगर आप बार बार वो चीज को करोगे तो डेफिनेटली यू आर हैविंग गुड कमांड ओवर देयर एंड यू कैन इजीली सॉल्व द सिचुएशन, ठीक है। लेकिन एक कंफर्ट होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपडेट नहीं करोगे, आप चेंज होने से नहीं सीखो, सीखना है आपने, ठीक है। तो इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, ठीक है। अभी आप लोग 4G यूज कर रहे हैं, 5G आ रहा है, हो सकता है आने वाले समय में 6G आएगा, भगवान जाने कौन कौन सा जी आएगा, ठीक है। तो अभी तो कोरोना जी मार्केट में बैठे हैं, तो मेक श्योर यू आर इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस गाइड है, कंटिन्यूअस गाइडेंस है टू बी प्रोवाइड बाय द सुपीरियर टू देयर सबऑर्डिनेट। वो बार बार देना है, एक बार देने से खत्म नहीं होगा, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना है, जहां वो गलती करेगा यू शुड प्रोवाइड गाइडलाइंस टू योर सबऑर्डिनेट। Then next point, it always follow a top down approach, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, top down approach, okay. And then next point, it provides linkage between other managerial functions such as planning, organizing and staffing. Post deck, you all know that post deck planning, organizing, staffing, directing, controlling. तो इट्स लिंकेज, यानी कहीं ना कहीं आपका रिलेशन है किससे? प्लान से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें वर्कआउट कर रही है एंड एट द एंड ऑफ टाइम वी नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, am I clear? कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें? Yes, sir. क्या बात है, मेरे को तो लगा सो रहे हो तुम लोग।
अच्छा चलो ठीक है, जग रहे हो। नहीं सर, कोरोना की वाली बात बहुत सच कही आपने। हाँ हाँ हाँ, क्या कहिए। सर, कोरोना जी वाली जो बात थी ना सर, वो तो एकदम करेक्ट था। अच्छा ओके, वो तो मैम जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो वो क्या है ना, अभी तो ऑनलाइन में ज्यादा मैं क्या बोलते हैं, वो नहीं कर पाता हूँ अपना जो मेरा जो टैलेंट है ना, वो मैं शो नहीं कर पाता। ठीक है, ऑल्दो यू ऑल आर फैमिलियर कि मैं थोड़ा क्लास कैसा लेता हूँ अलग टाइप से, अपन थोड़ा हंसते मस्त बढ़िया से खुश रहो और सबको खुश रहने दो, जी और जीने दो वाला अपना कंसेप्ट है। ठीक है, पर ये ऑनलाइन में ज्यादा वैसा कर नहीं पाते ना बेटा, बात करना थोड़ा सा। खैर वैसे तो तुम लोग अच्छे ही हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर वाले थोड़े से बदमाश हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक हो गया। देन नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो जब हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। सेम था क्या, इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन? इसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा। एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैनेजर इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग him, his subordinates should be reasonable, complete and clear. ठीक है, reasonable, complete and clear, there are three terms, reasonable, ठीक है। You people are moving to market while purchasing vegetable, जाते हो सब्जी खरीदने जाते हो क्या मार्केट? Yes, sir. तो is it nowadays, is it reasonable price of vegetables? वेजिटेबल्स के जो सर प्राइस है महंगा अभी तो। थोड़ा महंगा है। हाँ, इट मीन्स दैट नॉट रीजनेबल। ठीक है, रीजनेबल नहीं है। ठीक है, तो ये रीजनेबल और ये जो हम बात कर रहे हैं वो किस बेसिस पे बोलते हैं? सी वी पीपल आर बेसिकली फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और डेफिनेटली अगर गोभी 50-60 है तो ठीक है, लेकिन वो 80-100 होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और अभी कुछ टाइम के पहले ये सारी चीजें कंट्रोल में थी, रिजनेबल प्राइस पे थी, बट अभी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन थोड़ा कॉस्टली फ्रैंकली। ठीक है, तो नॉट रीजनेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्टिंग ही सबऑर्डिनेट शुड बी रीजनेबल। ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए, देन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यू शुड कंप्लीट योर टास्क एंड you should become clear as well, because अगर आप clear नहीं रहोगे, if you are having some confusion, you won't achieve your object. ठीक है, तो अपने को लाइफ में भी हमेशा एक चीज याद रखना है कि अपने को क्लियर रहना है। ठीक है, मेक इट क्लियर। ठीक है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। ठीक है, हाँ। देन नेक्स्ट पॉइंट, गाइडिंग, काउंसलिंग एंड टीचिंग दी सबऑर्डिनेट। देखो ये जो सुपीरियर्स होते हैं वो गाइड भी होते हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, काउंसलिंग करते हैं। सी व्हाट हैपेंड इन इंडस्ट्रीज, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑकर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, देखो लीकर कंजम्पशन, ये जो लीकर कंजम्पशन होता है, ठीक है, लीकर कंजम्पशन के कारण भी ये लोग दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये जो लोअर क्लास होता है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। व्हाई? बिकॉज दे आर लेस एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड, तो वो लीकर कंज्यूम करके कई बार जो एनवायरमेंट है उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो काउंसलिंग कि तुम इधर बैठो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन योर फैमिली? ठीक है, एंड इफ यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, दिस इज आल्सो गुड। क्यों पता है? क्योंकि किसी के साथ आपको कन्वर्सेशन करने के लिए इफ यू आर फैमिलियर विद लोकल लैंग्वेज, इट्स इजी टू एसोसिएट योरसेल्फ विद लोकल पीपल। यू कैन इजीली मेक देम फील बेटर कि ये अपने बीच का आदमी है, ये हमारा लैंग्वेज जानता है।
ठीक है ही नो। तो ये जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं ना, दे ऑल्सो लर्न दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। अगर आपको बहुत अच्छा बोलना नहीं आता, स्टिल आप अगर बेसिक्स थोड़ा सा पता है तो भी चलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड मोर एफर्ट टू नो दी लैंग्वेज, ठीक है। तो कई लोगों को आता है, दो चार लैंग्वेज बोल लेते हैं उन लोग, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ इंडियंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो क्लास क्वालिटी which manager who is having this class, ठीक है। एंड टीचिंग दी सबऑर्डिनेट, उनको बताना है, क्या बताना है कि अगर आप ऐसे लीकर कंजम्पशन करोगे, अपनी वाइफ से झगड़ा करोगे, तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके बच्चे भी बड़े होके क्या करेंगे, फिर वही लीकर कंजम्पशन करेंगे, शादी करेंगे, अपनी बीवी को पीटेंगे। यू शुड ऑल्सो टीच कि आपको लीकर कंजम्पशन देखो करते भी हो तो बी इन लिमिट, लिमिटेशन में करो। और बिकॉज फिजिकल टायर्डनेस को दूर करने के लिए अगर आप पी रहे हो तो चलेगा, लेकिन उसको भी लिमिट में पियो, ठीक है। अपना बजट देख के पियो, ये नहीं कि आप डेली एकदम क्या बोलते हैं उसको, ड्रंकर ही बन जाओ, ठीक है। लिमिट में पी लो, ठीक है, कभी कभी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत थक गए हो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे जाके आराम से खाना खा के सो जाओ, ठीक है। डोंट फाइट विद योर वाइफ। और कई बार ऐसा होता है कि आप काम भी नहीं करते, अपनी बीवी की पिटैया चालू कर देते हो, दिस इज बैड थिंग। तो यू शुड ऑल्सो टीच, ये बताओ कि तुम तो अच्छे नहीं बन पाए, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे, तो फिर आने वाला समय। सो यू शुड ऑल्सो टीच दिस सॉर्ट ऑफ giving direction while you will become manager, okay. So now next point, supervising the work of subordinate. So being a head, being a manager, you are responsibility in your shoulder. You always check the work of subordinate, ठीक है। आपको पर डे जाके चेक करना है, ठीक है। हर घंटे में चेक नहीं करना है, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम इफ देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट, कुछ बहुत जरूरी हो रहा है, यू शुड स्टे, यू शुड कनेक्टेड विथ योर सबऑर्डिनेट, ठीक है। आपको वहां रहना है, ठीक है। आपको वहां रहना है, वहां खड़े होना है, और आपको ऐसा शो करना है कि मैं आपको हमेशा देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आप अच्छा काम कर रहे हो, आई एम ऑब्जर्विंग। इफ यू आर नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी प्रॉपरली, आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग यू, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, उससे क्या होता है कि आपको जो वर्कर्स है, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, एंड दे बिकम सिंसियर, और वो अपने काम को थोड़ा सिंसियरिटी से करेंगे, तो डेफिनेटली काम अच्छा होगा, ठीक है। मोटिवेटिंग दी सबऑर्डिनेट, यू शुड ऑल्सो मोटिवेट, ठीक है। उससे आप मोटिवेशन के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो मॉनेटरी हो सकता है, एक नॉन मॉनेटरी हो सकता है। मोटिवेशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है, आप अगर एक प्लेट समोसा भी दे रहे हो, या फिर ऐसा कुछ छोटा सा रिफ्रेशमेंट टाइप का प्रोवाइड कर रहे हो एज अ मोटिवेशन, क्योंकि आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, ये अपन ने बहुत अच्छा मेहनत से किया, तो यू शुड मोटिवेट इन सम हाउ टू योर सबऑर्डिनेट्स। उसको अच्छा लगना चाहिए। अगर आप उसको चाय भी पिलाते हो, एक 5 रुपए की चाय, तो ही फील्स दैट कि नहीं, मेरा बॉस, मेरा जो मैनेजर है, वो मुझे इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये देखता है कि मुझे भूख लगा है तो कुछ खिलाता भी। मीन्स देयर इज अ केयर फैक्टर। इफ यू आर केयरिंग योर सबऑर्डिनेट ऑल्सो केयर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर। तो ये होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, और अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड प्रोवाइड सम इंसेंटिव प्लान्स, वो सब आप रेकमेंड भी कर सकते हो। बहुत सारे वर्कर्स को प्राइज भी मिलता है, उसके लिए ऑफिसर्स ही रेकमेंड करते हैं ना, those who are honest, those who are sincere, उन लोगों का नाम रेकमेंड होता है और उनको प्राइज वगैरह भी मिलता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, सी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी बड़ा काम करना है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी लाइफ में।
If you are having self discipline, you can do anything whatever you want. ठीक है, अर्ली मॉर्निंग गेटअप बैकअप, वो किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको खुद से उठना है। ठीक है, फिर आज की डेट में जो कोरोना चल रहा है उसके चलते आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, योगा वगैरह, रनिंग वगैरह जो भी है थोड़ा सा करना है, अपने आप को फिट रखना है। ठीक है, मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन। आप जो फूड वगैरह खा रहे हो उसको भी थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना है। ठीक है, आउटिंग बहुत ज्यादा भी नहीं करना है बिल्कुल। तो मेंटेन प्रॉपर सेल्फ डिसिप्लिन। देन कंसल्टेटिव डायरेक्शन। कंसल्टेटिव डायरेक्शन ये क्या है? बिफोर द इशू ऑफ एनी ऑर्डर, the people responsible for executive order will be consulted with regard to its feasibility, workability and the best way of accomplishing the result। ठीक है, अगर इसका ये मतलब है कि जो बॉस या फिर सुपीरियर है वो चेक करता है कि हमको ये जो ऑर्डर मिला है वो कितना फिजिबल, प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, फिजिबल है। वर्केबिलिटी यानी हमारे एफर्ट के अकॉर्डिंग है कि हमको और मैन पावर लगेगा या फिर कम लोगों में भी हो जाएगा। और अकम्प्लिशमेंट दी रिजल्ट्स, और हम कितने दिन में जो अपने को टाइम ड्यूरेशन पर रिजल्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो वी शुड थिंक अपॉन दैट। ठीक है, ये सब सोचना है और करना है। ओके, हाँ, तो कुछ समझ में आया आप लोगों को? ओके, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। कौन दे रहे हैं? इशिता, अनिका, नगमा, नीतुश्री, प्रफुल्ल, दीक्षा, स्मृति, तन्वी, पर नेक्स्ट खुशबू, स्वाति, स्वाति। ठीक है, okay then, have a nice day। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.